a pen? No, this is the pen. Are you kidding me? This is a pen. I bought it yesterday. No, this is the pen. I bought it yesterday. Sounds very confusing, doesn't it? Yes, it really does seem confusing. Hi everyone, I am Ali Gohar Maheswar, an English teacher and a motivational speaker, and you are watching Learn English with Ali Gohar Maheswar. Today in this video lesson, we are going to discuss the articles in English grammar. The articles, their types, their uses, and what the difference between both these articles. So today's video is all about the articles. But before going to discuss the articles, I would like to request all of you, all those students, all those people who are new to my YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. So let's get started. What is article? Article is a word in English which is used to describe a specific noun or an unspecific noun in English in a sentence. So basically there are two types of articles. Article which is used to specify certain things is known as definite article, and the article which is used to define unspecific things, general things, are things which are common, which are not known, they are general. This sort of article is known as indefinite article. The uses of both these articles, that is the definite article the, and the indefinite articles a and n, they are used differently in a sentence. So in our today's lecture, we are going to discuss what is definite article first. A definite article, that is the. Definite article the is used to talk about certain things which are known, which are specific, which are referred. At least the person who is talking about something is known to audience to whom he is talking to. So the definite article the, whichever word you pronounce it, the and the, they are used, this article the is used with known or specific things. So let us try and know how this definite article the is used in different usages. So let's get started with the uses of the definite article. Definite article the or the is used, number one, when we talk about a particular person or a thing, or one already referred to. That is when it is clear from the context which one we mean as. कि डेफिनेट आर्टिकल द जो होता है तब इस्तेमाल होता है जब हमें पता हो कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसको मज़ीद समझाने की कोशिश करूं तो डेफिनेट आर्टिकल द तब लगता है जब हम जिस बंदे से कोई बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के भी बारे में बात कर रहे हैं, उसको पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो पेन मांगी थी वो मैं लेना भूल गया. जो पेन, इससे पता है, इस जो पेन मांगी थी मतलब इसमें हमें पता चल रहा है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिससे कोई बंदा बात कर रहा है उसको पता है कि कौन सी पेन और किस पेन की जो है वो बात हो रही है. सो देयरफॉर definite article the is used when we talk about to the certain things which are known or referred. For example, the book you want is out of stock. The book you want, the book, जो बुक आपको चाहिए वो अभी ख़त्म हो गई है. तो इससे मतलब पता चलता है कि जो बंदा मांगने आया है बुक उसको भी पता है और जो बंदा जिसके बारे में बात कर रहा है बुक बारे में उसको भी पता है. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स गो टू द पार्क. लेट्स गो टू द पार्क. लेट्स गो टू द स्कूल. टू द स्कूल, द पार्क. अब इससे ये पता चलता है कि
जो बंदा कोई बंदा किसी से जब बात कर रहा है, जब किसी को कह रहा है कि भाई चलो आओ चलें पार्क की तरफ, आओ चलें स्कूल की तरफ, उसको पता है कि जो बंदा बात कर रहा है वो किस स्कूल और किस पार्क के लिए वो बात कर रहा है। देयरफॉर समटाइम्स उसको ऐसे भी लिया जाता है कि जो नियरेस्ट है, जो मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द पार्क। अब इन हालात में हमारे नज़दीक कोई और पार्क है ही नहीं सिवाय उसके जो हमारे बहुत नज़दीक है। Therefore, the person who is listening to knows very well that which park or which place is talked about in a sentence. Number 2, when a singular noun is meant to represent a whole class. जब एक singular common noun के बारे में बात की जाए, लेकिन उसके बारे में बात करने से उसके पूरी गिरोह, उसके पूरी ख़ानदान, उसके पूरी क्लास की हमें पता चल रहा है, तो इसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब इसमें यह है कि दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कि एक कुत्ता जो है वो वफ़ादार होता है। इसमें यह पता चलता है कि सिर्फ एक कुत्ता वफ़ादार नहीं होता, बल्कि जितने भी दुनिया में कुत्ते होते हैं वो वफ़ादार होते हैं। तो इसलिए दी इज़ यूज बिफोर द कॉमन नाउन डॉग, कॉमन सिंगुलर नाउन डॉग। And another example is the elephant is the heaviest animal. The elephant इसलिए यूज़ हुआ है because पूरी दुनिया में जितने भी एलिफेंट हैं वो सारे के सारे भारी भरकम होते हैं। Therefore we say the elephant is the heaviest animal. Number 3, the cow is a domestic animal. The cow is a domestic animal. दी काउ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज पूरी दुनिया में जितनी भी गायें हैं वो सारे के सारी वो पालतू हैं, वो घरों में पाली जाती हैं, इसलिए दी काउ। तो सेकंड जो हमारी कंडीशन है, जो सेकंड यूज़ जो है उसकी वो तब होती है यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगुलर कॉमन नाउन बट इन अ वे वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्वालिटीज़ ऑफ अ होल क्लास। एक की बात करें तो पूरे के पूरे ख़ानदान, पूरे ग्रोह, पूरे नस्ल की बात की जाए तो उससे हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट नाउन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। नंबर 3, लेकिन हाँ नंबर 2 इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सिवाय मेन और वेमन, सिवाय मेन और वेमन के, क्योंकि मेन और वेमन की बात करें तो मेन मीन्स इंसान, वेमन मीन्स औरत, तो पूरी औरतें और पूरे इंसान जो दुनिया में हैं उनकी बात करें तो उसके साथ भी हो सकता है डेफिनेट आर्टिकल द लगे। लेकिन इसमें ये एक एक्सेप्शन है, ये एक नोट है कि भाई जो वो मेन एंड वुमन हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, वो बगैर आर्टिकल के चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन इज़ मॉर्टल, मेन इज़ मॉर्टल, विमन इज़ वीक, विमन इज़ वीक, औरतें कमज़ोर होती हैं, और इंसान फ़ानी होता है। अब इंसान फ़ानी होता है कह रहे हैं कि जिसमें से वाज़े हो गया कि भाई इंसान से मुराद के पूरी दुनिया के इंसान, सिर्फ़ एक नहीं, और औरत कमज़ोर है इससे मुराद के पूरी दुनिया की औरतें, सिर्फ़ एक नहीं। लेकिन इनके साथ हम जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज़ एक्सेप्शन। लेकिन हाँ, सिवाय इसके व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर मैन और वुमन, कोई ऐसी औरतें और ऐसे मर्द हजरात जिनकी बिलखसूस हम बात करें, जो किसी ख़ास हवाले से बात करें, जिसकी जो नंबर 1 हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि रेफरेंस दें, जिनका हवाला दें, इशारा करें जिनकी तरफ। फॉर एग्जांपल, द मैन इन द प्ले आर इंटेलिजेंट, द मैन इन द प्ले, ड्रामा में जो मर्द हजरात हैं वो बड़े ज़हीन हैं। तो इससे पता चल गया कि सिर्फ एक ही बिलखसूस मैन की बात कर रहे हैं जो ड्रामा में, जो प्ले में हैं, जो ड्रामे में। और सेकेंडली, द विमन इन द प्ले, दी विमन इन द प्ले, दी विमन अब जो है वो सिंगुलर हो गया, लेकिन पूरी उस औरतों के हवाले से बात हो रही है। तो दी विमन इन द प्ले, दे आर द शार्पेस्ट, वो बड़ी तेज़ हैं। सो नंबर 3, the definite article the is used before certain nouns, certain books, names of books। किसी किताबों के नामों के साथ जो है हम डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन सिर्फ वो किताबें जो
पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनके जैसी कोई और बुक है ही नहीं और ना ही कोई बन सकती है। बिलखुसूस इस पे वी टॉक अबाउट दी होली स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स, फॉर एग्जांपल दी होली कुरान, the Holy Quran, the Gita, the Ramanaya, the Puranas, the Vedas. These are the examples of the certain books. Number 4, before some proper nouns, names with these kinds of place names. ऐसी जगहों के, ऐसी तबई जगहों के नाम जिनको हम जानते हैं और जिनके प्रॉपर नाउन होते हैं, ख़ास जिनकी कोई ख़ास नाम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल दी पैसिफिक, दी ब्लैक सी, दी गंगा, दी नाइल, दी सुएज़ कैनाल, दी सहारा, दी वेस्ट इंडीज़, दी हिमालय. सो इनमें से हो गया कि भाई ऐसे रिवर्स, ओशंस, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस जिनके जैसी कोई दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं, बिकॉज दे आर यूनिक इन देयर नेचर. लेकिन उनका कोई प्रॉपर नाउन है. हर किसी चीज़ की प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता, सिवाय इन प्लेसेस के जिनके हमने अभी जिनका जिक्र किया हमने, इनके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो यूज़ होता है. और एक छोटी सी एग्जांपल और भी है कि भाई वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद द माउंटेन रेंज, होल माउंटेन रेंज, नॉट अ सिंगल पीक. पूरी की पूरी माउंटेन जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी बात करेंगे. जिस तरह हिमालय हो गया तो हिमालय इज़ अ माउंटेन रेंज. लेकिन हिमालय में अब बात करें केटू की, तो केटू जो है वो दैट इज़ द पीक. तो इसलिए अब हम चोटी की बात नहीं कर रहे. व्हेन वी टॉक अबाउट द माउंटेन रेंज, whole mountain range, we use the before the name of the mountain range. Okay, number 5, before the names of the things which are unique in their kind. ऐसी चीज़ें जो खुदा ने बनाई लेकिन अब उनके जैसी कोई और बन नहीं सकती. ये थोड़ा सा जो नंबर 4 हमने पढ़ा अभी उससे थोड़ा सा मैच हो रहा है. All these are the sun, the moon, the planets में अब the earth, the Venus, the Mercury, the Saturn, Neptune, Uranus, etc. जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं इनका हम जिक्र करें, इनकी बात करें तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. मून, सन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. एंड विद अर्थ वी आल्सो यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द. सो विद द यूनिक थिंग्स विच आर मेड बाय गॉड and they can't be remade or reshaped, therefore they are when we discuss about them we use definite article the with them. So number 6, before a proper noun when it is qualified by an adjective or a defining adjectival class. ऐसी इसम जो के प्रॉपर नाउन हो, ऐसी प्रॉपर नाउन जिसके साथ हम कोई एडजेक्टिव क्लास, कोई मुहावरा, कोई थोड़ा सा दो अल्फाज आगे से रखें उसकी बात करने के लिए. जिस तरह अलेक्जेंडर दी ग्रेट अलेक्जेंडर, दी मोहम्मद अली जना, दी कायदे आज़म. तो दी कायदे आज़म, दी अलेक्जेंडर, दी ग्रेट सीजर. सो इनके साथ हमने क्योंकि ग्रेट लगाया है आगे से और इसलिए इनके साथ हमने दी लगाया है. बिकॉज हेयर वी put the definite article the before the adjective which qualifies their quality or characteristic features of the people or the persons we are talking about. So number 7, with superlatives, the superlative degrees. Superlative degrees means आपको पता है कि there are 3 types of degrees in adjectives, the positive degree, the comparative degree and the superlative degree. पॉजिटिव और कंपैरेटिव के साथ हम द नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल ही इज़ गुड, ही इज़ बेटर, इनके साथ हम द नहीं लगाते. लेकिन ही इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव के साथ हम जो है वो द लगाते हैं. तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्रीज वो होती हैं जिनके साथ EST आता है आखिर में, या तो जिनके साथ पहले ही मोस्ट लगता है. फॉर एग्जांपल द एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टाइनीएस्ट, द सिंपलेस्ट, the hardest, the toughest, and the easiest, the slowest, the fastest, etc. क्योंकि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज हैं तो इनके साथ हमने द इज अ डेफिनेट आर्टिकल हमने लगाया.
Okay, number 8 with ordinals. There are two types of conjunctions, adjectives known as numeral adjectives are known as ordinal and cardinal. Cardinal के 1 2 3 4 5 6 7 और ऑर्डिनल जो होता है उनके लिए हम ये कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि किसी बंदे या किसी चीज़ के बारे में उसको नंबर दे के उसके बारे में हम बात करें कि उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. तो जितने भी सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम दी फर्स्ट, दी सेकंड, Ali is the first in the class, he stood the third in the class, the ninth boy in the class, the first chapter in the book is very interesting, the first, the second, the 100th, the 20th, the 30th. तो इनके साथ जो है हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं. नंबर 9 विथ बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एज. अब जितने भी म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िक के जो मौसीकी के जो आलात हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दी गिटार, दी पियानो, दी वायलिन, दी ड्रम, दी फ्लूट, etc. इनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो यूज़ करना है. नंबर 10 बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड. अब ऐसी एडजेक्टिव जिसके बारे में हम बात करें तो हमें पता चल जाए कि हम किसके लिए बात करें. फॉर एग्जांपल दी पुअर इन द विलेज. दी पुअर मीन्स जितने भी गरीब जो लोग हैं इस पूरे गांव में. दी रिच इन द विलेज, जितने भी इस गांव में अमीर हैं उनकी बात कर रहे हैं. सो इनमें से हमें नाउन जो है वो नाउन बाज़ार है तो कोई नहीं, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन की तरफ इशारा कर रही है जो कि वहाँ मौजूद हैं. The poor, the rich, the wounded in the field, the wounded in the battle, जो कि ज़ख्मी लोग जो जंग में हैं. तो इनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगानी है. एंड नंबर 11 बिफोर अ नाउन. बिफोर अ नाउन विथ एम्फसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव एज. द वर्ब इज द वर्ड. अ वर्ब इज अ वर्ड नहीं कहते, द वर्ब इज द वर्ड, द नाउन इज द वर्ड. तो इन वर्ड्स के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो यूज़ करनी होती है. और लास्ट नंबर 12 एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव एज. जब दो जो फ़िक्रे जो क्लासेस होते हैं वो आपस में कंपेयर किए जाते हैं, जो एडवर्ब एज एन वो एडवर्ब के तौर पे जो डेफिनेट आर्टिकल होती है वो यूज़ होती है. द जो है वो यूज़ होती है एडवर्ब के तौर पे उन दो कंपैरेटिव क्लासेस में. फॉर एग्ज़ाम्पल द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न. जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे. द लेसर यू वर्क द लेसर यू अर्न. जितनी ज़्यादा कम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कम आपको जो नतीजे जो हैं वो मिलेंगे. सो विद द मोर द लेस द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न. द लेस यू स्टडी द लेस यू अर्न. द मोर यू वर्क हार्ड the more better results you achieve. The less you work hard, the worse results you achieve. So this is how we use the definite article the in order to compare two classes. So I hope you enjoyed my today's video lesson. If you want to learn more about English language, more about the grammar things in English, you must not forget to subscribe my YouTube channel, and I'll be keep updating my YouTube channel with more videos, and you'll be watching me on my YouTube channel with more interesting videos. Thank you for watching. Thank you. We'll meet again with another video clip. Thanks.